in my previous class, I was discussing about your topic first. That was the French Revolution and the idea of nation. I have already discussed about the steps taken by French revolutionaries to create sense of collective identity among French people. Then I have also discussed about the setting of Jacobin clubs in different towns and cities of Europe. Then the Civil Code of 1804, or it was also called as Napoleonic Code, and how these points or these factors were responsible for spreading nationalism in Europe. I was discussing Civil Code of 1804 or Napoleonic Code. So today I will discuss some features of Civil Code of 1804. I will complete this topic today. That means topic first will be completed today. After that I will give you the question answers. Then Napoleonic Code. Napoleonic Code. It was also called as Civil Code of 1804. इसको Civil Code of 1804 भी कहा जाता था because it was established in 1804. It did away with all privileges based on birth. After that, it established equality before law. It secured right to property. Then it simplified administrative divisions. It abolished the feudal system. It freed
peasants from serfdom and manorial dues. In towns, guild restrictions were removed. Then transport and communication systems were improved. So these were some features of Napoleonic Code. Napoleonic Code or Civil Code of 1804 played an important role in spreading nationalism in Europe. It tried to unite the areas which were controlled by Napoleon. नेपोलियन यूरोप के एक अच्छे खासे भाग पे पार्ट पे कब्जा कर चुका था और वो चाहता था कि उन सभी क्षेत्रों में टेरिटरीज में एक ही तरह का नियम कानून हो, एक ही तरह के लॉज से वो रूल हो. Therefore, Napoleon brought his Napoleonic Code or Civil Code of 1804 and he ruled his conquered territories through his representatives according to Napoleonic Code. जो जितना बड़ा भी क्षेत्र था उसमें एक ही तरह का नियम था, एक ही तरह का कानून था और उन सब क्षेत्रों को एक साथ यूनाइट किया गया. First provision was it was also called a Civil Code of 1804. 1804 से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसको it is also called a Civil Code of 1804. It did away with all privileges based on birth. It abolished the privileges based on birth. That means it abolished the privileges which were enjoyed by first state and the second state. It established equality before law. That means in territories of Napoleon, all people were equal before law. It secured right to property. Right to property was again established or protected by Napoleonic Code. That means it gave right to property to the people. अगर लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा, अपनी संपत्ति जमा करने की उनके पास में अधिकार रहेगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इट सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी मतलब लोग जितना कमाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को स्टेब्लिश करने के लिए, जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्सेस वो लोग देंगे. Therefore, it secured right to property. It simplified administrative division. That means administrative divisions were organized or reorganized according to Napoleon. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया. It abolished the feudal system. Previously, the land were the part of feudal lords. So it was abolished. The feudal system was abolished. It freed peasants from serfdom and manorial dues. जो सर्फ थे, जो भी एक तरह से लोग बॉन्डेड लेबरर की तरह काम करते थे फ्यूडल सिस्टम में, बंधुआ मजदूर की तरह. So these serfdom, that means serfdom were free. Serfdom was abolished. That means serfs were freed and manorial dues or taxes taken by the people who lives in manors. जो बड़ा बड़ा किला होता था उसके साथ में जो जमीन लगी हुई रहती थी उसको manors बोला जाता था. और तो इट फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज. जो सिविल कोड ऑफ 1804 था वो सर्फ लोगों को सर्फडम से या फ्यूडल सिस्टम से फ्री कर दिया और मैनोरियल जो ड्यूज था, तरह तरह का इलीगल टैक्सेस जो लिया जाता था जमींदारों के द्वारा, उससे भी उन लोगों को छूट मिली. इन टाउन्स गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड. जो गिल्ड्स था क्या था, तो ये एसोसिएशन था ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का इन टाउन्स. उनका अपना एक संघ होता था, एक श्रेणी होती थी. तो
गिल्ड्स के द्वारा बहुत सारा ऐसा रेस्ट्रिक्शंस ये किया जाता था जिसके कारण जो फ्री ट्रेड में काफ़ी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था गिल्ड्स, और ये किसी भी नए ट्रेडर्स को ट्रेड करने में बड़ा ही बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था, और जो फ्री ट्रेड था इट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू गिल्ड्स. सो द रेस्ट्रिक्शंस मेड बाय guilds in different towns and cities, it was removed. Transport and communication system were improved. These transport and communication system were improved for free trade. ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को जितना ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस आएगी. तो इन सब कारणों से ये जो दिस वेर द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, ये सब स्टेप्स एक सिविल कोड ऑफ 1804 में लिया गया, जो नेपोलियन कोड में इन सब को किया गया. दैट मीन्स एक तरह से एक साथ यूनाइट करके नेपोलियन एंड हिज सोल्जर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म थ्रू नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804. 1804 का जो नेपोलियनिक कोड था, नेपोलियन प्लेड एन important role in spreading nationalism in Europe through Napoleonic code. Napoleonic कोड था या सिविल कोड ऑफ 1804 था, इसके द्वारा जो नेपोलियन एंड हिज सोल्जर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ. दैट मीन्स इट यूनाइटेड द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804 यूनाइटेड ए बिग टेरिटरी अंडर नेपोलियन. जो नेपोलियनिक कोड था, सिविल कोड ऑफ 1804 था, वो यूरोप के एक बहुत बड़े भाग को नेपोलियन के तहत, नेपोलियन के रूल में क्या कर दिया कि इसको बांध दिया, एक जो यूनिटी क्रिएट किया. बहुत बड़ा जो टेरिटरी है वो नेपोलियन के लीडरशिप में या नेपोलियन के अंडर में बहुत बड़े टेरिटरी को ये टेरिटरी का गठन किया गया, जहां पे वो नेपोलियनिक कोड का एस्टेब्लिशमेंट किया, और उसके द्वारा एक तरह से उन सब क्षेत्रों में नेशनलिज्म फैला. बट Napoleon was welcomed as harbingers of liberty. Napoleon was welcomed as harbingers of liberty in different parts of Napoleon was welcomed as harbingers of liberty in different parts of Europe. Liberty means स्वतंत्रता, freedom. harbingers जो लेकर आने वाला होता है. नेपोलियन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में उसको, उसके सोल्जर्स को वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब लोगों को स्वतंत्रता देने वाले. यूरोप के लोग मानते थे कि नेपोलियन का जहां रूल होगा वहां लोगों को लिबर्टी मिलेगी. People will enjoy liberty in the territories which were conquered by Napoleon through Civil Code of 1804 और नेपोलियनिक कोड. उनका माना जाता था, उनके द्वारा मानना था जो नेपोलियन आएगा तो अपने साथ में लिबर्टी जो है वो स्वतंत्रता को लेकर आएगा. इसीलिए लोग उसको वेलकम करते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप. बट the initial
enthusiasm turned into hostility. लेकिन जो उसको वेलकम करते थे, बाद में वही लोग उसके अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो गए, उनके दुश्मन बन गए। जो लोग उनको जो लोग उनको नेपोलियन को वेलकम कर रहे थे, वही लोग उसके अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो गए, वही लोग उसके दुश्मन हो गए। क्यों? ऐसा क्या था कि शुरू में जो यूरोप के लोग उसको वेलकम किए और बाद में उसी के अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो गए? तो सबसे बड़ा उसके पीछे कारण था इंक्रीज्ड टैक्सेशन। इसको एक अलग क्वेश्चन के रूप में कर दें। Initial enthusiasm turned into hostility. Why? तो सबसे पहला increased taxation, नेक्स्ट था सेंसरशिप, इसके अलावा था फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, the above factors outweigh the advantages of administrative changes। जो शुरुआत में जो पूरा यूरोप है वो वेलकम कर रहा था नेपोलियन को, और वही बाद में उसके अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो गया, उसका दुश्मन हो गया। तो उसके पीछे कारण क्या था? पहले तो वेलकम किया गया पूरे यूरोप में और बाद में वही लोग उसके दुश्मन बन गए। क्यों? उसका सबसे बड़ा काम था, सबसे बड़ा जो कारण था वो था इंक्रीज्ड टैक्सेशन, उसके बाद सेंसरशिप, आफ्टर दैट फोर्स्ड कंस्ट्रक्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, जबरदस्ती पकड़ के फ्रेंच आर्मीज में लोगों को बहाल किया जाता था ताकि दूसरी जगह हम अटैक कर सकें और उसको जीत सकें। उसका काम था, नेपोलियन का एक ही एम था, पूरे यूरोप के ऊपर रूल करना, इसलिए हमेशा वो युद्ध करते रहता था। युद्ध करने के कारण उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा चाहिए था, और वो पैसा जुटाने का एक ही तरीका था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लोगों के ऊपर लादा जा सके। तो जो भी वो लिबर्टी लोगों को दिया था थ्रू सिविल कोड ऑफ 1804, या उसके थ्रू में जो भी अधिकार लोगों को मिला था, वो लोगों को लगने लगा कि जो अधिकार उनको कम मिला है और उसके बदले में टैक्सेस उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। उसके अलावा जबरदस्ती नेपोलियन के द्वारा उनको पकड़ के फ्रेंच आर्मीज में रिक्रूट किया जाता था ताकि वो लोग उसके लिए युद्ध कर सकें। तो ये क्या था? The factors outweigh the advantages of administrative changes। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के द्वारा जो एडवांटेजेस यूरोप के लोगों को मिला था, मतलब सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत जो भी एडवांटेजेस लोगों को मिला था,
वो सब खत्म हो गया इंक्रीज्ड टैक्सेशन के कारण, सेंसरशिप के कारण और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन के कारण। इसके कारण जो भी एडवांटेजेस सब नेपोलियन के द्वारा दिया गया था वो सब का सब खत्म हो गया। तो दिस वाज योर टॉपिक फर्स्ट। इन नेक्स्ट सेशन or in next class I will give you the question answers of topic first. Thank you.